We're going to start now. Assalamu alaikum to everyone. I just posted that clip in the groups also so that we can have just a bit of an idea what we are going to be discussing today. The topic that is actually bothering everyone and a very sad incident that has happened, and we need to look at it from in the light of Quranic ayat, and that's what the purpose of today's class will be. So, Rabbi Auzu bika min hamazat shayateen wa auzu bika Rabbi an yahdurun. Bismillahir Rahmanir Rahim. So we seek refuge from Shaitan's suggestions with Allah's protection, and with the name of Allah we are going to start, who is most merciful, most gracious. So this will be about the rape incident, and a lot of different things are being said about what should be done or how it should be done and what Islamic way is, and a lot of different schools of thoughts are presenting different understanding and perspectives. So we need to see what does Allah Ta'ala say in Quran about rape and about all the other things that people have kind of combined and probably misunderstood and linked it with rape also, and a lot of things have been just assumed that this is how it should be. So what they are saying, that's their understanding. So we have to see for our satisfaction and understanding what is it in Quran that Allah says about rape and how it should be dealt with, and what are the other things that we hear so much about, stoning or lashing or any flogging. So all those things also we will look at. When are those things to be, those punishments considered? So we'll start with Surah 4, ayat number 19. Surah 4, ayat number 19. Ya ayyuhal lazina amanu, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु लकुम, नहीं हलाल तुम पर, अन तरिसुन निस्साअ करहा, कि तुम विरसे में लो किसी औरत को, करहा against her will. So this is what it means here, that you are not to take, it is not halal for you, you are forbidden to take any woman as, to inherit her. Virsa means to inherit her in the sense to have possession or to have authority over her without her will, without her consent. Karhan, uski, unki will is very important. Forcefully आपने ये काम नहीं करना है. So ये believers को अल्लाह ताला ने clear guidance यहाँ दे दी है. वला तादुलुहुन्ना, and nor you should treat them with harshness. So it's not just in terms of rape, it's also in terms of marital relationship as well, कि औरतों की मर्जी के बगैर आप उनको forcefully bind मत कीजिए और ना ही आप उनको बुरे तरीके से treat कीजिए. बिबादे मा आतैतुमुहुन्ना, कि आप snatch कर लें, लितज़हबू बिबादे मा आतैतुमुहुन्ना, that you snatch away a portion of what you give them. So whatever portion of meher that you give them, you take away from them. Illa an yatina, सिवाय इसके कि वो आ जाएं बिफाहिशतिन मुबय्यना, कोई फहाश काम करते हुए, which is very clear, evident फहाशी के साथ अगर वो आती हैं. फहाश का मतलब vulgarity के sense में है, and it is it is indulgence in vulgar behavior. It is a very broad term, but here we can just keep it to the sexual terms. وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, और उनके साथ associate करें recognized तरीके से. You see, एक ही आयत में अल्लाह ने सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपने उनको against their will inherit नहीं करना है, बुरा सलूक नहीं करना है, unless they have done something very grave, seriously fahash. And even then you associate with them in a recognized manner. उनके साथ इस किस्म का बर्ताव नहीं करना as if you beat them up or you kick them out of the house or anything very rash.
फ़इन करिहतुमूहुन्ना, फिर अगर तुम्हें उनमें से कोई चीज़ नापसंद हो, फ़असा अन तकरहू शैअन, and it may be that you dislike a thing, वयजअलल्लाहु फीहे खैरन कसीरा, और बना दे अल्लाह इसमें तुम्हारे लिए कोई खैर कसरत से। आपको नहीं पता कि जो आपको चीज़ बुरी लग रही है, कोई नापसंद चीज़ है उनके बारे में, anything about them, Allah may change it as something good. तो ये अल्लाह की wisdom है, we don't know about it. So we have to submit to the ayat only and not argue about what is being said. जी जी आंटी, आयत 4 की 19 कर रहे हैं जी, टॉपिक आई मेंशन्ड इन द ग्रुप, which is about the current situation that we are all facing as a nation. जी, and there is a lot of 4 की 19 we just finished, 4 की 19. जी जी ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, सॉरी, वो ये कि जब लेक्चर माशाल्लाह नाम को पहुंचेगा तो एक रिक्वेस्ट थी, हम नजरसानी कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तो sure. जी जी श्योर आंटी, ओके आंटी, I'm just going to put your mic on mute. जी ओके जी जी, sorry because there was noise coming from the background, so I just put the mic on mute. So 4 ki 19 we just finished, which is about inheriting women against their will and not to be behave harshly towards them unless they have come with with clear vulgarity, but associate with them in a recognized manner. तमीज़ के साथ डील कीजिए, तमीज़ का दायरा नहीं छोड़ना आपने as a believer. So अल्लाह ताला किसी भी बुरी चीज़ को अच्छाई में बदल सकते हैं आपके लिए, ये अल्लाह की विजडम है जी। इसके बाद आप देखिए 4 की 93, देखें, because when a rape is committed, it is actually somebody is fighting to overcome the other person. It comes in the category of qatl, कि आपने किसी को इनको फोर्स करके आपने उसके ऊपर जबरन आपने उस पर ओवरकम किया है, ओवरवेल्म किया है। सो 4 की 93 देखिए, वमन युक्तिल मुमिनम मुतअम्मिदन, और अगर एक आदमी कत्ल करे किसी बिलीवर को इंटेंशनली, मुतअम्मिदन मीन्स इंटेंशनली, फजज़ाउहु जहन्नमु खालिदन फीहा, तो उसका रिकम्पेंस है जहन्नम और वो रहेगा इसमें हमेशा। वग़दिबल्लाहु अलैहि, और अल्लाह का गज़ब है उस पर, वलआनहु, और अल्लाह की लानत है उस पर, वअद्दा लहु अज़ाबन अज़ीमा, और तैयार है उसके लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट, बहुत बड़ा अज़ाब। सो ये तो अल्लाह की तरफ इसका मामला हो गया अगर उसने इंटेंशनली कोई काम किया है। So that is, he has tried to forcefully overwhelm and overcome and fight against a person who's vulnerable. So इसके साथ आप 2 की 178 देखिए, क्योंकि अगर किताल होता है जी, इसमें पर्सनालिटी की भी तो किलिंग होती है। एब्सोल्युटली जी, उस सेंस में भी आएगा, पर्सनालिटी की भी किलिंग हो रही है और फिजिकली भी आप फोर्स कर रहे हैं अपने आप को ऑन द अदर पर्सन, सो यू आर ओवरकमिंग, ओवरवेलमिंग द अदर पर्सन फोर्सफुली, सो यू हैव किल्ड द अदर पर्सन इन अ साइकोलॉजिकल। When we talk behind other people, जी, assume things about them and उनकी पर्सनालिटीज को तुम कत्ल करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। जी जी बिल्कुल, वो I mean it's not face to face but it's behind their backs. उसमें ये आएगा, उसमें आएगा ये जरा थोड़ा सा वो है जी, गीबत के सेंस में आएगा जब आप कर रहे हैं, yes you are doing character killing of the person, but it's more in the sense of ghibat when you're eating of the dead meat of the person. So you're for small gains you're actually consuming in their absence, on their weaknesses, so you're feeding off their weaknesses. So वो उस सेंस में आएगा। यहाँ पे जो किताल है, this is like
अप फ्रंट किताल है कि आपने उसको कत्ल कर दिया सामने से ही। ठीक है जी। अब 4 की आप 2 की 178 देखिए, क्योंकि किसास है किताल के मामले में। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरह 2 आयत 178। सूरह बकरा आयत 178। या अय्युहल लजीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुल किसासु, लिख दिया गया है तुम पर किसास, फिल कतला, कत्ल के मामले में। मीनिंग इफ somebody fights to overcome you, तो किसास, किसास मीन्स रिलेटेबल, उसी जिस किस्म का डैमेज हुआ है उसी किस्म का डैमेज कॉम्पनसेशन की सूरत में आपको वापस मिलना चाहिए। So related to that, the killing, the compensation should be provided. अल-हुर्रु बिल-हुर्रे, अगर किसी फ्री बंदे को, फ्री सोल को हार्म पहुंचा है तो उसकी कॉम्पनसेशन भी फ्रीडम के सेंस में होगी, इन द सेंस दैट such compensation which will provide a sense of freedom. Now this will go into further detail, but we are just going to restrict it to understanding it for our purpose. वल अब्दु बिल अब्दे, और अगर किसी सर्वेंट की किलिंग हुई है, मीनिंग आपकी किसी सबमिसिव साइड ऑफ पर्सनालिटी की किलिंग हुई है, तो उसकी भी रिकम्पेंस होगा बिल विद द सेम वे। वल उनसा बिल उनसा, और अगर किसी फीमेल की, सो अगर इमोशनल हुई है डैमेज, इमोशनल हार्म पहुंचा है, तो उसका रिकम्पेंस भी इमोशनल सॉर्ट ऑफ रिकम्पेंस होगा, ताकि आपको वो डैमेज जो है वो रिपेयर हो सके। सो यू विल नीड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द अदर पर्सन। फमन उफिया लहू मिन अखी है, फिर अगर कोई माफ कर दे उसमें से आपका भाई शैउन, कोई चीज, फत्तिबाउम बिल मारूफ है, then which is in a recognized manner, which is like reasonable way, अगर आपको कोई माफ़ी या compensation मिल जाती है, then follow it up. व अदाउन इलैहि बिइहसान, and compensate him and discharge it towards him in a good way. ऐसे तरीके से discharge कीजिए उसको. So any reasonable demand made by the brother of the person, ब्रदर ऑफ द पर्सन सिंपली मीन्स जो इंसान जिस पे जुल्म हुआ होता है वो उस वक़्त ऐसी स्टेट में नहीं होता है कि अपने लिए कोई डिमांड कर सके, लेकिन अगर उसका भाई का मीनिंग if they're in a position to demand themselves, or their supporting brethren will ask about some compensation, so that should be granted, and it should be with handsome gratitude, in the sense कि एहसान तरीके से अता की जाए। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम, ये है आपके लिए कंसेशन है, तख़फ़ीफ़ है, आसानी की गई है आपके रब की तरफ से, व रहमतुन, एंड मर्सी। फ़मन यअतदा बादा ज़ालिका, and then anyone who exceeds after this, फलाहु अज़ाबुन अलीम, तो फिर उसके लिए ग्रीविंग पनिशमेंट है। सो ये अल्लाह ताला ने आपके लिए रिलेटेबल कॉम्पनसेशन का लॉ बनाया है। जिसको जिस तरह से हार्म कोई पहुंचाएगा उसको उसी तरह की कॉम्पनसेशन देनी होगी। वलकुम फिल किसास से हयातुन, और तुम्हारे लिए किसास में हयात है, देयर इज लाइफ इन किसास फॉर यू। या उलिल अलबाब, ओ पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम गार्ड ले सको। ओके, सो ये अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका वो फैसला हो जाता है। अब इससे आगे इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। People who are managing, who are governing, they should be taking stock of the situation, and in light of these ayat, they should read up and then they should decide what should be done. So हमारे लिए नहीं है कि हम हर किस्म की बात आगे पीछे कहें। 4 की 59 देख लीजिए इस मामले में, सूरह 4 आयत 59।
because a lot of anger and aggression is there because nothing has been done in the past. So it's all pent up anger. That's why people want कि भाई इसको फांसी लगा दें publicly, stoning कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए. पहले देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या बताया है. उसके बाद people who are making the law or people who are governing the situations, they should be followed. 4 की 59. या अय्युहल लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, अतात करें अल्लाह की और अतात करें रसूल की. व उलिल अम्रे मिनकुम, and people who have been given the authority amongst you. So it is our duty also to follow Allah, Rasul, and next it should be people with authority. फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन, फिर अगर कोई डिफरेंस हो, कोई तनाज़ा हो किसी चीज़ में, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूले, then revert it to Allah and Messenger. इन कुंतुम तुमिनूना, अगर तुम ईमान लाते हो, बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर. ज़ालिका खैरुम, ये है बेहतर, this is best. व अहसनु तअवीला, और सबसे एहसन इंटरप्रिटेशन है. ठीक है जी. Now this is what we understand that we are required to do, and we are required to this is the perspective we are supposed to have. अच्छा, अब इसके बाद जो बहुत सारी बातें आती हैं फ्लॉगिंग के बारे में, और स्टोनिंग तो है ही नहीं कुरान में, लेकिन उसको भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से अल्लाह ने कही है. सूरा 4 देखिए, आयत नंबर 15. दो सूरतों में ये सारी सिचुएशंस बताई गई हैं अबाउट these kind of not particularly rape cases but फहाशी का जो सारा है ना, उसके बारे में and related to ज़िना, फहाशी related to ज़िना, उसके बारे में दो सूरतों में जिक्र आया है, निसा में और सूरह नूर में. ओके, सो सूरह निसा आयत नंबर 15. वल्लाती यअतीनल फाहिशता मिन निसाइकुम, और अगर आए कोई भी तुम्हारी औरतों में से फहाश काम करके, गिल्टी ऑफ ल्यूडनेस, guilty of vulgarity, excessive indulgence in something, in obscenity, in जो हम समझते हैं. फस्तशहिदु अलैहिन्ना, then seek the witness on her, arba'atam minkum, of 4 people from amongst you, 4 amongst you. फ़इन शाहिदु, फिर अगर वो विटनेस दे दें, टेस्टिफाई कर दें, फ़अमसिकुहुन्ना फ़िल बुयूते, then cohabitate with them in their homes, हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत, यहाँ तक कि उनको पहुँच जाए मौत. औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या बना दे अल्लाह उनके लिए कोई दूसरा रास्ता. अब इसको आप समझ लीजिए, ये 4 विटनेसेस का जो जिक्र हमने उसमें क्लिप में भी देखा था कि अगर 4 विटनेस नहीं लेकर आ सकते तो फिर आप शोर ना मचाइए, आप कोई डोंट रेज योर वॉइस अबाउट एनीथिंग. सो फहाशी, यहाँ पे ये सिनेरियो फ़र्क है. यहाँ पे सिनेरियो ये है कि इफ़ अ वुमन commits is guilty of lewdness, lewd act, then 4 witnesses, obviously you're not going to have people as witnesses. The witnesses are going to be forensic evidence, is going to be other things which are logical reasoning, which is going to, which is going to sort of testify or confirm that something like this happened. The indulgence of the woman in an act can be, proven by 4 things. So not just 1, 2, or 3, you need 4 things to prove, because it is a very big charge on anyone. So you need 4 things to prove that this was actually committed.
एंड उसके बाद अगर विटनेसिंग हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है, उनको घर में कोहैबिटेट कीजिए, घर में रखिए उनको। इसका मतलब amsiku hunna is the same word that has been used previously also in Surah Baqarah. आप रेफरेंस लिख लीजिए 2 की 231, that cohabitate with them. आपने वो उस किस्म के अगेन अग्रेसिव तरीके इस्तेमाल करने को नहीं कहा गया है। आप कोहैबिटेट कीजिए यहाँ तक कि उनको मौत आने का मतलब ये है द काइंड ऑफ द फीलिंग, द इमोशन बिहाइंड द इन्वॉल्वमेंट शुड एंड. So the death of that emotion takes place so that they are not looking to carry on with that act. It's simple. या अल्लाह ताला उनके लिए कोई दूसरा रास्ता बना दें. यानी उनको आयात की हदूद में रख के उनको बताया जाए, रिलेट करके कुरान से कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, उनको ये बताया जाए बेसिकली उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए बस. Which is very logical and reasonable way of containing any emotion basically. आपको किसी भी मौत आ जाए, जी जी जी, उस इमोशन की जो है ना, गलत इमोशन की मौत आ जाए, मौत बिल्कुल ठीक, जाके जो इससे वो इंस्टिगेट हो रही थी उनके अंदर गलत जज्बात, वो खत्म हो जाए, सिरे से खत्म हो जाए. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू. ये बात है जी. So we move on to 17. So same Surah 4, ayat number 17. आगे ये भी देख लीजिए, इन्नमा तौबातो अलल्लाह. नहीं जी, it's a different ayat, that's why I'm not reading it. वो फिर एक और conversation start हो जाएगी जी. Okay, so Surah 4 की 17, इन्नमा तौबातो अलल्लाह. Allah accepts तौबा लिल्लज़ीना यामलून सुआ. उन लोगों की अल्लाह तौबा एक्सेप्ट करते हैं जो कोई अमल कर लें बुराई का, बिजहालतिन, जहालत में, आउट ऑफ इग्नोरेंस. सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, और फिर then they turn to Allah right after that, soon after that. फ़ाउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो फिर वो लोग हैं जिनको अल्लाह, जिन पे अल्लाह ही टर्न्स टूवर्ड्स देम. वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह है इल्म रखने वाले और हिकमत वाले. So after something like this also, if somebody intends to correct and they feel that okay, they've committed some wrong, so Allah Ta'ala is oft returning. He always accepts tawbah of people who wants to correct. 18 देखिए, वलैसत तौबातो, और नहीं होगी उसकी तौबा of any effect, लिल्लज़ीना यामलून सय्यआत, वो लोग जो अमाल करते रहते हैं बुराई का. अगर आप तौबा करके फिर बुराई करेंगे तो आपकी तौबा कबूल नहीं होगी, माफ़ी नहीं मिलेगी, फर्दर गाइडेंस नहीं मिलेगी अल्लाह से. काला इन्नी तुब्तुल आना, कहा गया now inni tubtul ana, now that I repented indeed. Ahadahumul mautu, nor of those who die. Yamutuna wahum kuffar, and they die rejecting the faith. Kufr की हालत में उनकी डेथ होती है. उलाइका आतदना लहुम अजाबन अलीमा, ये वो लोग हैं जिनके लिए तैयार किया गया है मोस्ट ग्रीवस अजाब, पेनल्टी, जो कि ये सोचते हैं कि बस हमने तौबा कर ली है, बट दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट एंड दे डू नॉट मेंड देयर वेज. अगली आयत हमने पढ़ ली है रेप के सिलसिले में, आयत नंबर 19. एंड सो यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी आ गई है कि 4 विटनेसेस की कंडीशन ये वाली, दिस इज वन सिचुएशन वेयर 4 विटनेसेस आर रिक्वायर्ड. ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है, बस घरों में कंटेन करना है टिल दैट फीलिंग और रॉन्ग इमोशन डाइज. अब सूरह 24 देखिए. नेक्स्ट सूरह 24 की आयत नंबर 2.
आमना आपने वो जो कहा ना एक जगह पे कि the four things that that have to be fulfilled, what was those four things? You didn't highlight those 4 points. देखिए 4 लॉजिकल एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए 4 चीजों में आपके पास। फोरेंसिक एविडेंस होता है, कोई और चीजें होती हैं जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि इस किस्म की चीज में इंडल्जेंस रही है किसी की। So it's not just, you know, somebody saying that, okay, I saw that person. It's not based on assumption. We need proof. We need for witnessing. So for witnessing should be in the sense of proof. Or somebody actually saw somebody going there and, you know, तो वो आपको 4 लोगों की या 4 चीज़ों की गवाही चाहिए होती है। So it's not based on, you know, आप इस किस्म का allegation किसी पे without proof नहीं लगा सकते हैं। So then how is this going to affect the situation right now with this girl? देखिए ये गर्ल की तो सिचुएशन फोरेंसिक एविडेंस आ गया, वो तो सारी क्लियर हो रही है बात, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, उसमें तो यहाँ पे तो क्लियर उस तरह की बात है। सो इट्स नॉट अ कुक्ड अप स्टोरी, इट्स नॉट समथिंग, आप बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो जैसे जैसे आपको जिस हालत में उसको पाया गया एंड ऑल दोस द डिटेल्स एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें आर विटनेसेस ऑफ द फैक्ट दैट वट एवर थिंग हैपेंड। So that is based on that things should be, लेकिन ये आप देखिए सिचुएशन फर्क है, उसके साथ रेप हुआ है, ये बात हो रही है of a person. That's why we are discussing all these ayat to see the situation that is being considered, जिसमें 4 गवाह की जरूरत है। That is when the person is committing lewdness. A person, a woman is committing an act of vulgarity. फहाश काम जो कर रही है उसके ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप 4 चीजें या 4 एविडेंस इकट्ठे कर लीजिए पहले, otherwise you're not in a position to say anything. I have a question. The Fahash Act again is done, you know, it's not forceful. When she commits, जी यहाँ पे वो बात ही नहीं, वो बात देखिए वो टॉपिक खत्म हो गया कि वो रेप का मैंने आपको बताया, वहां पे किताल हुआ, कत्ल हुआ उसकी नफ्स का और उसकी पर्सनालिटी का। सो दैट वाज अ डिफरेंट सिचुएशन और उसमें किसास का मामला है। ये सिचुएशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज देयर ऑल काइंड ऑफ, यू नो, पीपल मिसअंडरस्टैंड। जिस तरह अभी आप कह रही हैं कि उस सिचुएशन में 4 गुना, वो तो सिचुएशन हुई नहीं। शी वॉज नॉट इंडल्जिंग इन एन एक्ट, सो शी उसके साथ ज्यादती हुई है, तो उसके लिए 4 गवाह उसको नहीं जरूरत है उसके अगेंस्ट प्रूव करने के लिए। if someone commits a fahashi act or zina, it's out of consent, so then nobody is going to have 4 witnesses watching you. देखिए यही बात, देखिए इस तरह से I mean, how can that be applicable that when somebody says उसने commit zina किया है, देखिए आप you're not going to have 4 witnesses. This is what I could never understand, that fahashi act को आप 4 witnesses कहाँ से लाओगे आप? I mean, is somebody watching you? You are committing a relationship out of your own consent. That's right, auntie. Consensual, you know. Yes, but उसमें बिल्कुल ठीक, absolutely आपके वो तो बाद में आपको बदनामी करनी है, और if they are caught, तो फिर वो जिना का एक्ट हो जाता है। That's right. Once the relationship comes out in the open. Yes. But where the hell are you going to get 4 witnesses to prove that was exactly? जी 4 witness का मतलब औरत के ऊपर डालने के लिए, सिर्फ औरत के ऊपर डालने के लिए ये जो होता है। But then Allah has also said 4 witnesses होनी चाहिए। So 4 witness का मतलब 4 आदमी या 4 इंसान नहीं है जी। 4 witness का मतलब 4 evidence. Like अब I'm not a lawyer that I can, you know, present something के भाई cases में मुझे experience नहीं है, but आपकी WhatsApp chat कोई आप check कर सकते हैं, आपके कोई और फोटोग्राफ आ सकती है, कोई बहुत सारी चीजें आजकल as an evidence आ सकती हैं to suggest or actually prove that this is it. So this has happened. So yes, absolutely, nobody is going to be, they're not going to commit anything wrong in presence of 4 people, but it's not 4 people, it is 4 pieces of evidence.
ठीक है जी. But also, Amna, इसके अंदर the burden of proof rests with the accuser. Accuser, exactly. I think that is the thing. That is what is important. The burden of proof is yes. a high standard. Yeah. Yes, absolutely. It rests with the accuser. जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने की है. That is what the point is being made. कि आप किसी को इस किस्म का चार्ज नहीं लगा सकते without having 4 proofs, 4 pieces of evidence. That is what is to be taken into account. यहाँ पे कोई एक उड़ी उड़ाई बात पे इतना यकीन करके तो फसाद क्रिएट हो जाता है. आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फसाद भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. आगे अल्लाह ताला ने इतने अच्छे तरीके से कह दिया, उसको बस कंटेन कीजिए फमसिकु हुन्ना मारूफ तरीके से. सो ये आप पूरी देखिए कि उसमें कितनी ज़्यादा औरत के लिए प्रोटेक्शन है एंड हाउ टू डील विद हर, नॉट टू बी सो अग्रेसिव. वो सारी तो बात ही नहीं है जो कि हम आजकल जो सुन रहे होते हैं कि भाई अगर इस किस्म की कोई चीज होगी है तो पता नहीं क्या कर देना चाहिए. अभी आप आगे देखते जाइए. लेट्स कंटिन्यू विद द आयात, देन वील हैव मोर क्लैरिटी. आई हैव अ क्वेश्चन हियर. जी. अच्छा, मुझे पूरी डिटेल्स इसका नहीं पता है जो भी ये हुई हैं, लेकिन अपेरेंटली द लेडी वाज ड्राइविंग ऑन अ रोड फ्रॉम लाहौर टू गुजरांवाला. ठीक है. वो अदनान, if we can just keep it till the end, because फिर ये भी lecture I'm recording it also, तो वो फिर बीच में सारी आयतें जो है ना, let's read the आयतें first, we'll have the discussion in the end on this. ठीक है जी, because पहले हमारा perspective develop होना बहुत ज़रूरी है. Thank you so much. So 24 की 2 देख लीजिए कि अल्लाह ताला इस किस्म के सारे मामलात जहाँ पे जो जो कुछ कहा गया है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या जो ट्रीटमेंट कही गई है या जो 4 विटनेसेस कहाँ से आए हैं. My point is for us to have clarity as people who read the book, that we should know, अगर कोई इस तरह की डिस्कशन होती है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ये ना हो कि अच्छा पता नहीं कुरान में क्या लिखा है. हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो पढ़ रहे हैं कुरान को, तो हमें पढ़ना चाहिए और खुद अपने लिए सीखना चाहिए कि कहाँ क्या क्या कहा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है और किस हद तक कहा गया है. We should not be saying anything out of whatever our emotional or any under sort of taking lead from anyone else कि अच्छा भाई ऐसे होना चाहिए. So let's read the ayat and then see what exactly is the ayat saying. So 24 की 2 देखिए. Az-zaniyato waz-zani. Here it is talking about adultery. Az-zaniyato and az-zani. So the woman committing adultery and the man committing adultery. So it's and meaning both. ठीक है जी. यहाँ पे adultery की बात आई है. वो वाली आयत was about woman committing lewdness. यहाँ पे बात आ रही है of both of them committing adultery. Fajlidu. यहाँ पे fajlidu is flogging. अब जिल्द को हम डिटेल में देखेंगे later on, so that we understand what exactly this punishment means. Fajlidu, जिल्द का मतलब skin का है. So here it is translated as flogging. So we'll just continue with that for now. Kulla wahidim minhuma. हर एक को उन दोनों में से मिअता जल्दातिन of 100 stripes. तो यहाँ पे दोनों की हो रही है, एक की बात नहीं हो रही है. So it's not about one person. Both of them will get 100 whatever stripes this means. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun. And let not compassion, कोई नरमी आपके अंदर ना आए, फी दीनिल्लाह, अल्लाह की जजमेंट में, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वल यशहद अज़ाबहुमा, और विटनेस करे इस पनिशमेंट को, ताइफतुम मिनल मुमिनीन, अ ग्रुप फ्रॉम अमंग्स द बिलीवर्स. अब ये जो बात होती है ना कि पब्लिकली किया जाए, क्योंकि यू सी, और इस तरह से पब्लिकली हो, तो यहाँ से वो उठाई जाती है बात. लेकिन पब्लिकली यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ बिलीवर्स शुड विटनेस दिस of whatever punishment is being given to them.
सो अब इसको हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी नीड टू कंप्लीट ऑल द आयात. नंबर 3 देखिए, अजानी ला यनकेहु. अब पनिशमेंट के बाद अल्लाह ताला अपना लॉ बता रहे हैं कि अ मैन ऑफ एडल्ट्री cannot guilty of adultery cannot marry illa zaniyatan, सिवाय किसी a woman guilty of adultery के, और mushrika, or a woman who's not a believer, वो जो शिर्क करती है. बिकॉज ये पेयरिंग बनती है जानी की जानिया के साथ या मुशरिका के साथ. उसकी पेयरिंग बिलीविंग औरत के साथ नहीं बनती. वह जानिया तो ला यन के हुआ, और जानिया जो है औरत वो निकाह नहीं कर सकती इल्ला जानिन और मुशरिक, सिवाय एक जानी मर्द के या किसी मुशरिक. बिकॉज आपका लेवल ऑफ गार्ड मैचेस ईच अदर. अगर आपने इस तरह की इन्वॉल्वमेंट रखी है या आप यू डोंट हैव अ वैल्यू सिस्टम लाइक दैट यू बिलीव इन गार्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग एंड गार्डिंग योर गैप्स, तो फिर आपके लिए भी वही पेयरिंग होगी सूटेबल. इट इज जस्ट बेसिक, यू नो, इट इज जस्ट वेरी लॉजिकल, क्योंकि वो फिर अंडरस्टैंडिंग आपकी एक साथ होगी. वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, एंड दिस वुड बी, सिवाय अगर वो ये नहीं करते तो ये हराम होगा ईमान वालों पर, मोमिनीन पर. ऑल राइट. वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाते. अब अगेन आप देखिए, पीपल, जो लोग एक चार्ज लगाते हैं, ब्लेम करते हैं मुहसनाते, चेस्ट वुमेन को, किसी फोर्टिफाइड वुमेन के ऊपर कोई चार्ज लगाए, सुम्मा लम यअतु, और ना ला सके वो, बिअरबाते शुहदा, 4 विटनेसेस को, 4 एविडेंसेस को, फज लिदूहुम समानीना जल्दतन, उनको आप फ्लॉग करेंगे, उनको आप कोड़े लगाएंगे 80 स्ट्राइप्स के साथ. आप इमेजिन कर सकते हैं द काइंड ऑफ चार्ज दिस इज, कि अगर जितनी सज़ा उसकी है एडल्ट्री कमिट करने वाले की, और अगर कोई किसी फोर्टिफाइड नेक औरत के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो उसको भी पढ़ने चाहिए गलत इल्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो 4 विटनेसेस नहीं ला सका. So be careful before you say anything about the character of any person, because you will incur a punishment upon yourself if you are going to say anything about someone else without evidence. So samanina 80 jaldatan stripes, wala taklabu lahum shahadatan abada, और नहीं कबूल की जाएगी उनसे उनकी विटनेस कभी भी. So they will not be considered honest people. व उलाइका हुमुल फासिकून, और ये लोग हैं जो कि ट्रांसग्रेस करते हैं. अब अगेन ये इतनी बड़ी बात के बाद भी अल्लाह फरमाते हैं इल्ला लजीना ताबू मिन बाद ज़ालिका, सिवाय उन लोगों के जो रिवर्ट करते हैं, तौबा करते हैं इसके बाद, व अस्लहु, और अपनी इस्लाह कर लें. फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं. अब आप we continue to number 6. Is this for the wrong witnesses or is it for the people who have committed the? नहीं जी, it is for those who cannot prove the charge with 4 witnesses. So you can't charge a person with this kind of, with an adultery or with this kind of a act, lewd act, without having witnesses, meaning without having 4 evidences, minimum 4 evidences. तो आपके लिए, वरना आप नहीं कर पाते हैं. और अगर आपने किसी नेक इंसान को ऐसी बात कह दी, फोर्टिफाइड, जिसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा दिया, तो आपको भी पनिशमेंट जो है वो 80 स्ट्राइप्स की होगी. तो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चार्ज समवन ऑफ एनीथिंग. वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम, आई एम रीडिंग नंबर 6, आयत नंबर 6. Wallazina yarmuna azwajahum, and for those
who launch a charge against their spouses. अब ये देखिए अल्लाह ताला हर किस्म की चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. पहले जानी एंड जानिया को डिस्कस किया जनरली. उसके बाद आपने किसी नेक औरत को अगर आपने चार्ज कर दिया किसी ने, आउटसाइडर्स ने, तो उनकी सज़ा बताई है. नाउ द थर्ड थिंग इज कि आप अगर अपने स्पाउसेस पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई भी, मैन ऑन वुमेन और वुमेन ऑन मैन, वलम यकुल लहुम शुअदाउ, और नहीं वो लेकर आते उनके ऊपर कोई विटनेस, एंड दे हैव नो अदर विटनेस बट देयर ओन, इल्ला अनफुसुहुम, सिवाय उनकी नफ्स के, फशहादतु अहादिहिम, if they bear witness 4 times अरबाउ शहादाते, तो उनको फिर विटनेस देनी होगी 4 दफा. So that's the kind of witness that you have to give अल्लाह के सामने. बिल्लाह इन्नहु लमिन स्वादिकीन, बेशक अगर वो हैं सच बोलने वाले. So 4 दफा आपको कंफर्म करना होगा अपनी तरफ से that your spouse is involved in a wrong act. वल खामिसतु, और 5वां, अन्ना लानतल्लाह, कि अल्लाह की लानत हो अलैहि, उसके ऊपर, इन काना मिनल काज़िबीन, अगर मैं झूठों में से हूँ. So bringing upon Allah's curse upon yourself, it is so huge. So आप इस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझिए कि किसी पे इल्ज़ाम लगाना कोई छोटी बात नहीं है इस मामले में. एंड स्पेशली अगर आप अपने स्पाउस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, सो आपको 4 जगह से कॉन्फर्मेशन होनी चाहिए, और 4 दफ़ा आप खड़े होके विटनेस दे सकते हो कि यस यू नो अबाउट दिस, यू आर विटनेस टू दिस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस और वेज. एंड द 5th इज, आप कहेंगे 5th witness would be कि Allah's curse be on you if you are telling a lie. So you have to be short, about anything. So that is the kind of, आपके लिए आपके ऊपर responsibility आती है. वयद्रउ अनहल अज़ाबा, और ये दूर कर देगा उनसे अजाब को, उसकी स्पाउस से, अन तशहदा अरबाआ शहादातिन बिल्लाह, अगर वो स्पाउस विटनेस कर दे 4 दफा अल्लाह के साथ, इन्नहु लामिनल काज़िबीन, कि उसका जो स्पाउस है इज टेलिंग अ लाई. सो ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने स्पाउस को भी दी है कि इफ ही और शी सेज 4 times that this is not right, this is not correct, so they can revert the azab from them. Wal khamisata, and 5th time they will take oath, anna ghadaballahi alayha, के बेशक अल्लाह का गजब है होगा उस पर, इन काना मिनस सादिकीन, अगर वो सच्चों में से है. सॉरी, इफ he or she solemnly invokes the wrath of Allah, so वो अपने ऊपर अल्लाह का गजब इन्वोक करेंगे अगर वो सच नहीं बोल रहे तो. सो ये अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, और anybody putting blame or charge of fornication, lewdness or adultery on another person. वलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम, और अगर नहीं होता अल्लाह का फजल तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, एंड बेशक अल्लाह इज तौबा कबूल करने वाला, हिकमत वाला, विज वाइज पर्सन. अल्लाह इज वाइज. सो यहाँ तक आप जो 4 विटनेसेस की आप सिग्निफिकेंस को समझ गए हैं कि जहाँ कहा जाता है इस्लाम में कि 4 विटनेसेस ज़रूरी हैं, तो वो किन सिचुएशंस में ज़रूरी हैं, उनका मतलब क्या होता है, और उनकी हैंडलिंग कैसे समझनी है. अब नंबर 12 भी देखिए, जो कि हमारे ऊपर आयत होती है, एज दोज हु आर जस्ट लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग दिस सिचुएशन. सूरह 24 की आयत नंबर 12, लौला इज समअतमुहु, और क्यों नहीं जब तुमने सुना इसको, ज़न्नल मुअमिनीना वल मुअमिनाते,
तो एज्यूम किया मोमिनीन मर्दों और औरतों ने बिअनफुसिहिम खैरा, अपनी नफ्सों में, of anything better, something good. Why did you, because at the, you know, when we hear of something like this, we instantly believe in it. Why would you not assume something otherwise? आप क्यों कोई बेहतर चीज क्यों नहीं सोच सकते इस मामले के बारे में? वकालू हाजा इफ्कुम मुबीन, and say that this is an obvious lie. Why do you accept anybody's allegation so easily? ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर कोई इस तरह की बात कहता है तो आप उसको फौरन बिलीव मत कीजिए और आप कहिए कि शायद यू नो दिस कैन बी अनट्रू एज वेल. लौला जाऊ अलैहि बिअरबआति शुहदा, और क्यों नहीं वो लेकर आए उस पर 4 विटनेसेस. फ़इज़लम यअतु बिशुहदाए, और अगर वो नहीं लेकर आए 4 विटनेसेस, फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, तो बेशक ये लोग अल्लाह के नज़दीक झूठ बोलने वालों में से हैं. सो अगेन आपको भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बनती है कि किसी पर इल्ज़ाम लगे तो आप उनसे 4 प्रूफ मांगिए, 4 एविडेंस मांगिए कि हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दिस. और अगर नहीं ला सकते तो आपकी बात में सच्चाई नहीं है. वी विल नॉट लिसन टू वट एवर यू आर सेइंग, वी विल नॉट बिलीव इन यू. सो what happens is unnecessary gossip circulates, and that's what, you know, causes reputation of so many people who have not done anything wrong go down. So we as believers have to verify any information that we are receiving and validate it with, you know, 4 इस किस्म की information के बारे में अल्लाह ने कहा है आपको 4 evidence चाहिए. Okay. वलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम, और अगर नहीं होता फजल अल्लाह का तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, फिर दुनिया वल आखिरते, दुनिया में भी और आखिरत में भी, लमस्सकुम फीमा अफत्तुम फीहे, तो एक अफेक्ट कर जाती तुम पर, मा अफत्तुम फीहे अजाबुन अजीम, एक बहुत बड़ी पनिशमेंट would have seized you that you rushed into, जो आपने तेजी में जो काम किया है without verifying anything, so आपके ऊपर खुद आपके ऊपर punishment आ जाएगी. इस तलक कौनहु बिअल्सिनातिकुम, what you receive on your tongues, वतकूलूना बिअफवाहिकुम, और जो बात तुम कहते हो अपने मुंह से, मा लैसा लकुम बीहे इल्मुन, जिसके बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं है, वतहसबूनहु हय्यना, और तुम हिसाब लगाते हो कि दिस इज अ वेरी ट्रिवियल मैटर. सो इन योर ओपिनियन इट मे बी अ ट्रिवियल मैटर, वहुवा इंदल्लाहि अजीम, और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा मैटर है. दिस इज बिग इन साइट ऑफ अल्लाह. सो डू नॉट टेक दीज मैटर्स लाइटली. You cannot just pass on anything that you hear without confirming and verifying. वलौला इस समिअतुमूहु कुल्तुम, और क्यों नहीं जब तुमने सुना इसको तो तुमने कहा, मा यकूनु लना अन नतकल्लमा बिहाजा, इट इज नॉट राइट ऑफ अस, हमारे लिए नहीं है कि हम इस तरह से बात करें. सुब्हानका हाजा बुहतानुन अजीम, सुब्हान है हमारे रब, सुब्हान है आप, ये बहुत बड़ा बुहतान है. सो वी हैव टू, किसी किस्म का बुहतान लगे किसी पर, कोई एलिगेशन लगे, आपने उसको ऐसे विदाउट वेरिफिकेशन, वैसे भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फैलाने की, किसी की बुराई को फैलाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, लेकिन आपने अगर उस पर यकीन भी करना है, आपको पता भी चलती पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सो यू हैव टू वैलिडेट. याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन, अल्लाह आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप इसको कभी रिपीट ना करें इस तरह से, इसकी मिसाल, इन कुंतुम मोमिनीन,
अगर आप ईमान वाले हैं। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, और इस तरह बयान करते हैं अल्लाह आपके लिए आयतें। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। इन्नल लजीना युहिब्बूना, बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं, अन तशी अल्फाहिशातु, कि इशात हो, पब्लिसाइज की जाए फहाश एक्ट को, फिर लजीना आमनु, ईमान वालों के दरमियान ऐसे लोग जो हैं, लहुम अजाबुन अलीम, उनके लिए ग्रीविंग पनिशमेंट है, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह को इल्म है, व अंतुम ला तालमु, और तुम्हें इसका इल्म नहीं है। वलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम, और अगर नहीं होता फजल अल्लाह का तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, व अन्नल्लाह रऊफुर रहीम, and Allah is full of kindness and full of mercy. So it's all because of Allah that we are protected, and under His protection we manage everything and stay guarded. So आपको आगे इस तरह की चीज़ें फहाश फैलाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है. Do not talk about things like this. Do not publicize wrong acts of anyone. All right. अब आप देख लीजिए इसका जिना के बारे में एक और देखिए 17 की 32 कि this has the instruction कि it is not allowed. Surah 17 ayat 32. वला तकरबु ज़िना, और नहीं तुम करीब जाओ ज़िना के, इन्नहु काना फाहिशा, बेशक ये है फहाश काम, वसाअ सबीला, और बहुत बुरा रास्ता. ठीक है जी, ये आपको क्लियर गवर्निंग आयत, मोहकम आयत आ गई है कि ये काम नहीं करना है. ओके, अब I've discussed most of the आयात जो कि डिस्कस की गई हैं, और या जो जो कि डिस्कशंस में आगे पीछे बातें हो रही हैं, so that at least we are aware of what Allah has said in Quran. If I think we can now have a discussion about these ayat if you want to say anything. We'll just read one dua first ताकि हमें भी सेंसिबिलिटी अल्लाह ताला अता करें. 18 की 10 दुआ देख लीजिए. रब्बाना आतिना मिन लदुनका रहमतों, ए हमारे रब हमें अता कर दीजिए अपनी रहमत से, अपनी तरफ से. वहय्यि लना मिन अमरिना, और हमें ग्रांट कर दीजिए अपनी तरफ से अमरिना रशद, हमारे ऑर्डर्स में सेंसिबिलिटी. So please bestow on us, our Lord, bestow on us mercy from yourself, and dispose of our affairs for us in a sensible way. जी,